ज़करिया 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम। किंग्स जेम्स वर्शन में से पहले पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Redanicam esial re lectolira esianto। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाने की हम आपसे विनती करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। ज़करिया चैप्टर 1। ज़करिया exhorts to repentance. Vision of the horses, comfortable promises made to Jerusalem. Vision of 4 horns and 4 carpenters. First verse. In the 8th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, The Lord hath been sore displeased with your fathers. Therefore say thou unto them, Thus saith the Lord of hosts, Turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts. Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the Lord of hosts, Turn ye now from your evil ways and from your evil doings. But they did not hear nor hearken unto me, saith the Lord. Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But my words and my statutes which I commanded my servants the prophets, did they not take hold of your fathers? And they returned and said, Like as the Lord of hosts thought to do unto us, according to our ways and according to our doings, so hath he dealt with us. Upon the 24th day of the 11th month, which is the month Sabbath, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Salem. Then lifted I up mine eyes and saw, and behold, 4 horns. And I said unto the angel that talked with me, What be this? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And the Lord shewed me 4 carpenters. Then said I, What come these to do? And he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head, but these are come to fray them, to cast out horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah, to scatter it. Chapter 2. An angel sent to measure Jerusalem and its flourishing state under God's protection foretold. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। I lifted up mine eyes again and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him, and said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls for the multitude of men and cattle therein. For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Ho, ho, come forth and flee from the land of the north, saith the Lord. For I have spread you abroad as the 4 winds of the heaven, saith the Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwellest with the daughter of Babylon. For thus saith the Lord of hosts, After the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you toucheth the apple of his eye. For behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servants.
And ye shall know that the Lord of hosts hath sent me. Sing and rejoice, O daughter of Zion. For lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the Lord. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee. And thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall inherit Judah his portion in the holy land, and shall choose Jerusalem again. Be silent, O all flesh, before the Lord, for he is raised up out of his holy habitation. Chapter 3. Under the type of Joshua, the restoration of the church promised, Christ the branch is promised. First verse say, and he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. The Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan. Even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment. And I said, Let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head, and clothed him with garments. And the angel of the Lord stood by. And the angel of the Lord protested unto Joshua, saying, Thus saith the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among this that stand by. Hear now, O Joshua the high priest, thou and thy fellows that sit before thee, for they are men wondered at. For behold, I will bring forth my servant the branch. For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the graving thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. In that day, saith the Lord of hosts, shall ye call every man his neighbor under the vine and under the fig tree. थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। हम इन्हीं अध्याय को हिंदी में पढ़ेंगे। जकरिया 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय BSI बाइबल में से। सिरारिका ज़ेयंत आहा रेदानिकिम ओजियालरा। जकरिया 1 अध्याय। परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान। पहले वचन से, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तो इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं?
परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। घोड़ों से संबंधित दर्शन। 7 वचन से आगे। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यो पहुंचा, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे है जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तो उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियाँ सुख से रहती है उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। सिंह से संबंधित दर्शन। 18 वचन से आगे। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसमें मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। नापने की डोरी से संबंधित दर्शन। 2 अध्याय। पहले वचन से। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखो उसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। बंधुआई में गए लोगों का बुलाया जाना। 6 वचन से आगे। यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली
पसली ही को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। महायाजक से संबंधित दर्शन, 3 अध्याय, पहले वचन से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। थैंक यू अब्बा फादर गॉड। पवित्र आत्मा इन वचनों का भेद रहस्य हमको खोल कर दे, इसके अंदर से हम प्राप्त कर सके, हमारा माइंड विल इमोशन इसे ग्रहण कर पाए और हमें सुधार आ सके, परमेश्वर में हम उन्नति कर सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 3 chapter 12 वर्स से 26 वर्स। एजरा 3 chapter 4 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 12 वचन से 26 वचन। इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय। हम अकेले में पर्सनल टाइम में व्यक्तिगत समय में बैठकर इन वचनों को पढ़ेंगे। जैसे ही हम वचन को पढ़ते जाएंगे परमेश्वर भेद खोलता जाएगा, हम में सुधार लाना शुरू करेगा और हमें जिस प्रकार का व्यक्ति होना है परमेश्वर के राज्य के योग्य में, वैसा वो हमको उन गुणों के साथ बदल बदल कर हमको तैयार करेगा। अगर आप अपने तरीके से इसे पढ़ना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ने का फैसला किए हुए हैं, तो हम वैसे पढ़ते जा रहे हैं। ओके, कोई परवाह नहीं हम कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ही एकमात्र स्रोत है जो हमको इन वचनों को सिखाता है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है इस बाइबल रीडिंग के समय में। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा,
हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।